So, good morning and Jai Hind students. I welcome you once again in my physics class. What we have to study is in the continuation of our series in the chapter of force and laws of motion. हमने ये जाना था कि what does force can do, what are its impact, its application. These are some basic phenomena. Today we are going to study about different types of force. Different types of force. So broadly, forces are classified into two types. First one is balanced force, and next one is unbalanced force. What do you understand by balanced force? It is nothing but it just say that if the resultant of all the forces acting on a body is zero, if the resultant of the sorry, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, एक वर्ड आप यहाँ पर मार्क करिएगा, that is resultant. Okay, the forces are called the balance force. Now I am giving you example. Suppose this is your box. Okay, so this box is placed on a table. Yes, its weight will be in downward direction, force due to gravity. आप में से बहुत सारे लोग जो जानते होंगे वो ये बता देंगे कि सर इस फोर्स की वैल्यू होगी mg, जो जानते होंगे. अदरवाइज आई विल टेल यू दिस इन ग्रेविटेशन. ठीक, तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ आ रहा होगा. ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से आया? ड्यू टू दिस टेबल, ड्यू टू दिस टेबल. ओके, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, दे आर कैंसलिंग each other's effect. Got the point? They cancel each other's effect. Now, so it is definite that this block will not do any vertical motion. वर्टिकल मोशन नहीं होगा. ठीक. अच्छा, अभी बात करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल मोशन की. हॉरिजॉन्टल मोशन मीन्स, अरे दिस यू हैव स्टडीड ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ओके, सो आई एम सेइंग दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज अ वर्टिकल एक्सिस. तो वर्टिकली मोशन नहीं होगा, बचा कौन सा? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल पे आपने एक फोर्स लगाया टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, or better I say west. If I just divide it into north, south, east and west direction, to counter this force which is applied in the west direction by this help of hook, a same amount of magnitude but in opposite direction a force should be applied. So this is showing that the block on the table is acted upon many forces, but force F applied by left hand is being balanced by force F applied by the right hand. ये हमें जानना था. अगर किसी भी सिचुएशन में आपके काउंटर फोर्स की वैल्यू इनिशियल फोर्स की मैग्नीट्यूड की इक्वल हो जाए और डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाए, व्हाट आई से इज magnitude wise they should be equal. Okay, और डायरेक्शन में they should be opposite. अगर ऐसा होता है तो आपकी जो कंडीशन निकल के आएगी दैट इज नोन एज द बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन. नाउ व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? सो wait a minute, this is unbalanced force if the resultant of all the forces acting on a body is not zero. वहाँ पर क्या लिखा हुआ था? ज़ीरो. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नॉट ज़ीरो. द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेज. गॉट द पॉइंट? दिस इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. नाउ we will go deep in the balanced force. So returning for the previous slide, when a body is at rest, when a body at rest is acted upon by balanced forces. Suppose there is a body which is at rest and you have applied the balanced force.
द बॉडी इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड। पहली बात तो बॉडी अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं, दैट इज़ बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी। रेस्ट की पोजीशन को आप स्टेशनरी भी कहते हैं, ठीक है। चाहे तो आप रेस्ट बोलिए, चाहे स्टेशनरी कंडीशन बोलिए, बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर। ओके, सेकेंड पॉइंट, व्हेन बैलेंस्ड फोर्स when balanced forces act on a body moving with constant velocity. Constant velocity, have you heard this earlier? Constant velocity means 20 मीटर पर सेकेंड अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये टाइम के साथ 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको इसका एक ग्राफ बताया था, कांस्टेंट वेलोसिटी। सपोज दिस इज़ वी एक्सिस, दिस इज़ टाइम एक्सिस, तो आपका ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा। टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी की वैल्यू नहीं चेंज होगी। ये डॉटेड लाइन बनाना चाह रहा हूँ पर ये बन नहीं रहा क्योंकि पेन सपोर्ट नहीं कर पा रहा इसको, ठीक है। आप समझ जाइएगा। सपोज दिस इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी टाइम टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर भी वो था, टाइम टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर भी यही था, टाइम टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर भी आपकी यही बात थी। दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट द पॉइंट सर? इट वाज अ क्विक रिवीजन फॉर मी बिकॉज आई फॉरगॉटेड व्हाट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ ठीक है, चलो अब तुम लोग के मन की बातें भी मैं बीच बीच में बोल देता हूँ। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। बोले तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में? ज़ीरो। दैट इज़ द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम स्पीड एंड जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी उसी डायरेक्शन में ही रहेगी। व्हाट द पॉइंट? एग्जाम्पल, व्हेन रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम क्लाउड्स at a greater height, the drop at first gain velocity due to gravity of the earth, but after falling through some height, अब यहाँ पर हमारे पास है बादल भैया, बादल बाबू ने कुछ रेन ड्रॉप्स गिराए और जब इन्होंने गिराए तो यहाँ तक तो थोड़ी वेलोसिटी इंक्रीज़ करी ड्रॉप्स की, बट फॉलिंग थ्रू द सेम हाइट अ स्टेज कॉल्ड इक्विलिब्रियम अकर्स। इक्विलिब्रियम मान लेते हैं यहाँ पर आता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे आप इसको तो वैसे क्लास 11 ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी रिएक्शन में कोई आप एक रिएक्टेंट लेते हैं और ये आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, सेम प्रोडक्ट से ही आपका वापस से रिएक्टेंट बनने लगता है और ये दोनों की प्रोसेस एक बराबर हो जाती है, मतलब जितना रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बन रहा है उसी प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बन जा रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है ना बाबू, इसको आप कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। दैट मीन्स आपकी इक्वेशन इतनी अचीव कर गई है कि आप उसको ना तो फॉरवर्ड जाते हुए देख पा रहे हैं ना तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हुए देख पा रहे हैं। व्हाट द पॉइंट? तो वहाँ पर ये लिखा है कि इक्विलिब्रियम अकर्स, तो हमने कहा कि यहाँ पर आ गई इक्विलिब्रियम। When downward weight of the drops is balanced by the upward force such as upthrust and viscous force, the net force acting on drops will be zero। क्यों? क्योंकि साहब मान लेते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ड्रॉप में आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी इसकी वजन की, यानी अपन कह रहे हैं कि उसको mg, और द सेम अमाउंट में इसका एयर रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ लगेगा और विस्कस फोर्स भी ऊपर लगेगा। तो इन दोनों को मैं एक ही मान लेता हूँ। कैसे? ये लीजिए, इन दोनों को मैंने रेड कलर की टॉप लाइन से शो कर दिया। सो टॉप लाइन पर जितना फोर्स लग रहा है आपके ये बॉटम साइड पर भी तो उतना ही फोर्स लग रहा है। सो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, बैलेंस्ड फोर्स हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया मतलब अब यहाँ के बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे मूव करेंगी। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप विल बी ज़ीरो, हेंस नो मोर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ऑन द ड्रॉप्स। अभी फोर्स बैलेंस्ड हो गया, फोर्स की कंडीशन बैलेंस्ड हो गई, मतलब एक्सेलरेशन, मास तो चेंज होगा नहीं, मास भी कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया, फोर्स बैलेंस्ड हो गया हमारा। तो ये क्या करेगी ड्रॉप्स, ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, देयरफॉर द रेन ड्रॉप्स मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी।
which was last gained by the drops just before reaching equilibrium condition. This was the condition of balanced force. This was all about for the balanced force. In the next coming video, I will upload some more information about unbalanced force. Till then, study hard, stay safe, and take precautions. Thank you and Jai Hind.